Hello students, today we'll discuss NT Abhyas NEET Test 100 Physics Part. Here is the paper analysis. This test has 25 easy questions, 19 medium difficulty level questions and 2 questions are difficult. And 145 plus would be a good score. Let's start with question number 1. If proton and alpha particle are accelerated by same potential v, then ratio of their wavelengths would be. So if a charged particle q is accelerated by v potential, then its kinetic energy is qv. Kinetic energy ko we can write p square by 2m equals qv. And further, p can be written as h by lambda and 2m is qv. So if we rearrange this formula for lambda square, then this would be h square upon 2m qv, and lambda would be proportional to under root of mq. So we have to find lambda proton upon lambda alpha. So mass of proton is 1/4 of that of alpha and charge of proton is half of alpha. So this would be 2 root 2 is to 1, option A. Next question. Two energy levels of electron in an atom are separated by 2.3 eV. Frequency of radiation is. So delta E is h nu and nu is delta E by h. So delta E is 2.3, so we can convert in joule. So 1.6 into 10 raised to the minus 19 से multiply कर दिया. This is in joule. H is 6.6 into 10 raised to the power minus 34. 2.3, 1.6. So 6, 3, 18, 12, 13 and this is 23. So 3.38 on 6.6 into 10 raised to the power 34 and 19. So it is 15. And this is approximately 6.6 into 5, 6, 5, 30, 33. So this is approximately a quantity which is slightly greater than 0.5. So 0.5 into 10 raised to the power 15. So C option would be the closest match. Question number 3. Man stands at one end of a boat which is stationary. So boat is stationary, man stands at one end of a boat. Neglect water resistance, so we have to neglect external force. Man now moves to the other end of the boat and again becomes stationary. So center of mass of man plus boat system will remain stationary with respect to water. So for the given case, if external is 0, अगर f external 0 है, तो ACM भी 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा. तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. एक तो इनिशियल वेलोसिटी cm का 0 है, अगर 0 है तो cm विल रिमेन एट रेस्ट. और दूसरा केस बनता है कि UCM इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो. तो दिस मीन्स cm विल कंटिन्यू टू मूव विथ UCM. जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उससे CM मूव करता ही रहेगा. तो यहाँ पर इनिशियली मैन भी खड़ा हुआ है और बोट भी स्टेशनरी है, दैट मीन्स UCM इज 0. तो फॉर ऑल द केसेस CM will remain at rest. So in all the cases. Next question. 3 blocks of masses mm and capital M are kept on frictionless floor as shown in figure. तो frictionless floor है, that means यहाँ पर external force 0 है. Leftmost block is given velocity v towards right. All the collision between blocks are perfectly inelastic. So collision का type हमें पता है. Loss in kinetic energy after all the collision is 5/6 of initial kinetic energy. तो ratio बताना है हमको. तो अगर हम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो इनिशियली mv फर्स्ट वाला मूव कर रहा है, ये रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम 0. एंड सेकंड, क्योंकि कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक तो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, से v डैश. तो v डैश इज v by 2. नाउ ये कंबाइंड मास है 2m का जो कि v डैश से मूव कर रहा है और कैपिटल M से कोलाइड किया. तो इनिशियल मोमेंटम 2m v डैश, फाइनल मोमेंटम m प्लस 2m इंटू v डबल डैश. तो v डबल डैश हो जाएगा 2m v डैश अपॉन 2m प्लस कैपिटल M. v डैश इज v by 2, तो दिस वुड बी m v अपॉन 2m प्लस कैपिटल M. हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5/6 ऑफ इनिशियल, तो
5/6 of initial kinetic energy, which is half mv square, is equal to loss in kinetic energy. So initial kinetic energy minus final kinetic energy. Final kinetic energy is total mass into v double dash, which is m square v square upon 2m plus capital M whole square. तो ये तो एक कैंसिल हो गया. फिर हम हाफ एम वी स्क्वायर को भी हाफ हाफ और इनको भी कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 5/6 इक्वल्स 1 माइनस ये हाफ गया, ये m गया, तो m 2m प्लस कैपिटल M. दैट मीन्स 1/6 is equal to m upon 2m plus capital M. रीअरेंज करने पर 2m plus capital M is 6 times small m. That means capital M by small m is 4. तो D option हो जाएगा. Next question. An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with steady speed of 900 km per hour. Find the ratio of centripetal acceleration. तो centripetal acceleration is v square by r and g. इनका रेशियो हमें बताना है. तो v is 900 km per hour. तो 900 km per hour को if we convert in meter per second, then this would be 250 meter per second. So 250 into 250 divided by radius, which is 1 kilometer. So in meter that will be 1000 and g is 10. तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 6.25. तो क्लोजेस्ट आंसर 6.4 है. ये हो सकता है g की वैल्यू हम 9.8 लें तो फिर आ जाए. Question number 6. Paramagnetic substance of susceptibility 3 into 10 to the minus 4 is placed in magnetic field of 3 into 10 to the minus 4 ampere meter inverse. So ये हमें h का वैल्यू गिवन है. h is 3 into 10 to the power minus 4 ampere meter unit meter inverse. Unit is according है. And susceptibility, which is chi, so it is also 3.3 into 10 to the minus 4 ampere meter. ये susceptibility और ये h. So we know intensity of magnetization is chi h. So if we multiply these two values, then answer would be 9 into 10 to the power minus 8. Next question. For what value of R in the circuit as shown, current passes through 4 ampere will be 0. So in this branch we have to take current as 0. तो अगर current 0 है, that means there would be 0 potential difference across 4 ohm resistance. So if I mark this as 0 volt, तो ये 10 हो जाएगा. आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 है एंड 0 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा. अब ये करंट कैसे मूव करता है? करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो 10 से 6 यहाँ मूव करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस 4 का है, रेजिस्टेंस 2 है, तो 4/2 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा. यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, यहाँ से भी माने 2 एम्पेयर ही फ्लो करेगा, है ना. और इसके अक्रॉस, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 minus 4 2 और करंट भी 2 है, तो R इज V/I 2/2 इज 1, तो 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. When two resistances R1 and R2 are connected in series, they consume 12 watt power. When they are connected in parallel, they consume 50 watt. So ratio of R1 and R2. So for series, power would be V square upon R1 plus R2. This is currents when they are connected in series. And when they are connected in parallel, so power would be V square and उनका parallel combination हो जाएगा R1 R2 R1 plus R2, है ना. अभी अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, हम PS by P लिखें, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 plus R2 होल स्क्वायर. सीरीज पे पावर है 12 और इसमें है पैरेलल में 50. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये 25. इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 6R1 स्क्वायर प्लस 6R2 स्क्वायर प्लस 12R1 R2 इक्वल्स
25R1 R2। फर्दर इनको हम अगर रीअरेंज करें और R2 स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6R1/R2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस इधर आ जाएगा तो 13R1/R2 इज 0। तो ये R1/R2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6R1/R2 होल स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो 6 आए और ऐड करने पर 13 आए। तो यहाँ पे इसको -13R1/R2 प्लस 6 इज 0 मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो ये हो जाएगा 6R1/R2 होल स्क्वायर माइनस 9R1/R2, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा 4R1/R2 प्लस 6 इक्वल 0। तो अगर आप रीअरेंज करोगे तो हम 3R1/R2 माइनस 2 और 2R1/R2 माइनस 3 इक्वल 0। तो R1/R2 का वैल्यू या तो 3/2 या 2/3, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls with charge 5 and 10 microcoulomb are at a distance of 1 meter from each other. In order to reduce distance between them to 0.5 meter, the amount of work. तो work done is delta u. delta u में पहले इनके बीच में डिस्टेंस था 1 और अभी है 0.5। तो k q1 q2 बाय k q1 q2 बाय r1 और ये फाइनल माइनस इनिशियल। q1 q2 कॉमन है 9 into 10⁻⁹ Q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, Q2 is 10 माइक्रोकूलम। फाइनली इनके बीच में डिस्टेंस 0.5 है और इनिशियली 1 था, तो ये 2 - 1 1 ही हो जाएगा। तो Q1 Q2 बाय R, यहाँ पे 9 5 45 और ये 6 और 6 -3 और ये 10 तो -2, तो 0.45 जूल in ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस इज गिवन। ई वेक्टर हमें गिवन है, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर इज शोन इन फिगर, दिस फ्रेम लाइज इन XY plane, sorry the point N lies in XY plane and theta is 60 डिग्री। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो हम ऐसा बना सकते हैं ON लाइन को, ये Y है ये X है एंड दिस वुड बी ON लाइन। एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये 90, यहाँ एंगल हमको 60 गिवन है तो ये 30 हो जाएगा और ये फिर 60 होगा। तो एरिया वेक्टर के हम कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, इज A cos 60 माइनस j कैप प्लस A sin 60 I कैप। हमें फाइंड करना है फ्लक्स विच इज E डॉट A, तो E इज √3 I कैप माइनस j कैप, तो √I का यहाँ कॉम्पोनेंट है A sin 60, A sin 60 टाइम्स √3 प्लस यहाँ पर माइनस j कैप और इसका कॉम्पोनेंट है A cos 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड A इज 1 मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर, sin 60 इज √3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो ये 2 आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical wires A and B have same length and carry same current. Wire A is bent into a circle of radius R while wire B is bent into a square of side A. तो एक ही वायर है, एक में तो हमने इसको सर्कल में बेंड कर दिया, दैट मीन्स L is equal to 2πr, और दूसरे में इसी वायर को हमने स्क्वायर ऑफ साइड A में बेंड कर दिया, दैट मीन्स L is equal to 4 times A। अब हमें बताना है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। B1 की वैल्यू μ0I/2R, ऐसे ही B2 की वैल्यू, यहाँ पर ये 4 वायर्स हैं
और सेंटर पे बताना है, तो एक वायर की वजह से लिखते हैं और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वायर का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो आर इज ए बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो दोनों में ही यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा होगा, cos 45 प्लस cos 45, 2 cos 45, इट इज 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 ही हो जाएगा। तो B2 का वैल्यू हमारा आ रहा है ये 2 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। हमें फाइंड करना है B1 बाय B2, तो B1 बाय B2 इज म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 2r और इसमें ये ऊपर जाएगा पाई ए और 2 रूट 2 इधर। सही है। अब आपको a बाय आर का वैल्यू चाहिए, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम a बाय आर लिखेंगे तो a बाय आर यहाँ से हो जाएगा 4, सॉरी उल्टा हो जाएगा 2 पाई बाय 4। तो यहाँ पे वैल्यू हमने प्लेस कर दी 2 पाई बाय 4, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2। दैट मीन्स ऑप्शन बी। Question number 12. In series LCR circuit, R is 10 and Z is also 10. तो जब भी R और Z का वैल्यू सेम है तो माना ये रेजोनेंस का केस है, और रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 होएगा करंट और वोल्टेज के बीच में। और इन जनरल आप ऐसा भी लिख सकते हो cos phi is R by Z, क्योंकि R और Z इक्वल है, cos phi 1 है तो phi 0 हो जाएगा। Question number 13. Satellite moves around Earth in a circular orbit of radius capital R, making 1 revolution per day. Second satellite moving in circular orbit around the Earth once in 8 days. The radius of the orbit of second satellite is. So we know t square is proportional to r cube, और r is proportional to t raised to the power 2 by 3. पहले वाले सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 1 डे है और दूसरे वाले का 8 डेज है ना। तो हमारा जो टाइम है वो 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8 की पावर 2 बाई 3 दैट मीन्स 4। तो जो हमारा रेडियस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 4 आर के रेडियस में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Two spheres of masses m and capital M are situated in air and gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3, तो gravitational force. तो gravitational force जो है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है, पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा चाहे कोई भी मीडियम हो। Two solid spheres of radii R1 R2 are made of same material, तो इनका मटेरियल सेम है and have similar surfaces. These are raised to temperature and then allowed to cool under identical condition. तो ratio of their initial rate of loss of heat. तो अगर हम heat emission, rate of heat emission निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा A e raised to the power 4। यही हमारा dq by dt। ये तो emission हो गया, और absorption जो होगा इसमें बस पावर T0 raised to the power 4 आ जाएगी। तो इनिशियली टी और टी नॉट तो सेम है, बस इनका एरिया अलग अलग है। तो एरिया अलग अलग है, तो इनका टी और टी नॉट 4 तो सेम है, सिग्मा भी सेम है, एरिया अलग अलग है। तो जो एच का रेशियो आएगा वो एरिया के रेशियो में ही आ जाएगा। एरिया इज 4 पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई R2 स्क्वायर, तो ये R1 बाय R2 होल स्क्वायर। That means option C. 16 question. An ideal gas is found to obey an additional law Vp square is constant. The gas is initially at temperature T, volume V. When it expands to a volume 2V, the temperature becomes. Okay. तो पहले टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V था और प्रेशर P था। अब यहाँ ये जो लॉ फॉलो कर रहा है वो है P is proportional to V raised to the power half। हम इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या करा, वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया, तो नया वॉल्यूम V डैश इज 2V। तो जो नया प्रेशर होगा वो 1/√2P हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को हमने ट्वाइस कर दिया है, तो यहाँ पे 2
और ये अंडर रूट है तो √2p हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो है PV बाय NR, तो ये प्रोपोर्शनल है PV से, P1 बाय √2 हो गया और V ट्वाइस हो गया। हाँ, 1 बाय √2 हो गया, ये ट्वाइस हो गया, तो टेम्परेचर √2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, तो ये हमें देखना है गैस का टाइप इज डायटोमिक, अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम A to B, change in internal energy during the transition is, तो डेल्टा U for an ideal gas is NCV delta T, क्योंकि यहाँ पर हमको डायटोमिक गैस गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो 5R/2 इंटू डेल्टा टी, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब ना तो T गिवन है ना N गिवन है, नहीं N तो गिवन है, T गिवन नहीं है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/2 nRT फाइनल, तो P फाइनल V फाइनल, nRT इनिशियल, तो P इनिशियल V इनिशियल, तो हो जाएगा डेल्टा ऑफ PV, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो हम P फाइनल V फाइनल देखें तो ये है 6 और ये है 2, तो 6 2 जा 12 इंटू 10⁻³ माइनस P इनिशियल V इनिशियल 4 और ये 5, तो 20 इंटू 10⁻³, तो ये जाएगा -8 और ये 4, तो -20 किलो जूल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, long wire carries a steady current, it is bent into a circle of 1 turn, the magnetic field at center of the coil is B, तो लॉन्ग वायर थी जिसको हमने एक टर्न में करा, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 2π कैपिटल R, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में वो है μ0I/2R। तो बोला है हमसे इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अब बहुत सारे टर्न्स कर दिए, तो सपोज n टर्न्स हैं, तो L का वैल्यू हो जाएगा 2πR n टाइम्स, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा μ0I/2 स्मॉल r, यहाँ था 2 कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि n टर्न्स है। अब यहाँ पर अगर हम R और स्मॉल r में रिलेशन देखें तो कैपिटल R इज n टाइम्स स्मॉल r, है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो P2 को μ0I/2, स्मॉल r को लिख दिया R/n, और ये n इस तरह हो जाएगा n² μ0I/2R। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा n² टाइम्स हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो यूनिट देखना है पर सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज B0²/2 μ0, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। सोलेनॉइड के लिए B इज μ0Ni² 2 μ0, तो एनर्जी डेंसिटी हमारा हो जाएगा μ0n²I²/2। μ0 को लिख सकते हैं 4π × 10⁻⁻⁷, n का वैल्यू 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर इंटू 40 10⁻⁻² एंड करंट इज 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2π 4 4 16 16 2 32 5। अब ये 10⁻⁻⁷ और ये +4 -3 और ये 2, तो -1, तो 3.2 पाई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और रेस्ट से स्टार्ट किया है। If the distance covered in first 10 seconds is s1 and that in first 20 seconds is s2, तो रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, u का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन कुछ a है t0 और टाइम हमको कुछ t0 गिवन है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बताना है, तो डेल्टा x u a एंड t ये हमारे सेकेंड इक्वेशन में है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² हमने लिखा, u इज 0, तो ये जस्ट हाफ at² होगा, दैट मीन्स डेल्टा x इज प्रोपोर्शनल टू t², है ना, a तो कांस्टेंट है,
अब आपने क्या करा है, 10 से 20 कर दिया टाइम, मतलब ट्वाइस कर दिया, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो S2 इज 4 टाइम्स S1. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is projected with an initial velocity of 8 I cap plus 6 J cap, horizontal ranges. So R को we can write it is Ux into capital T and capital T is 2 Uy by G. Ux horizontal component is 8, तो यहाँ 8 लिख दिया. 2 Uy it is vertical component, तो वो है 6 divided by 10. तो ये हो गया 8 2 16, 16 6 96, 9.6. Question number 22. Consider a car moving along a straight horizontal road with speed 72 km per hour. Coefficient of static friction between tires and road 0.5 given है. The distance, shortest distance in which the car can be stopped. तो कार इनिशियली मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको फाइनली हमें स्टॉप कराना है और म्यू का वैल्यू गिवन है. तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके डी एक्सेलरेशन के लिए. तो आप रिटार्डेशन को लिख सकते हो F by n. F is mg into म्यू अपॉन n. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी, रिटार्डेशन म्यू जी माइनस म्यू जी. तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज v square minus u square upon 2a. So 0 minus u square which is 20 square on 2a is 0.5 into 10, so it is 5. तो ये आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन 40 मीटर्स. 40 मीटर्स में जो हमारा कार है वो रुक जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs a bag on the spring and the spring reads 40 Newton. तो ऐसा ही होता है, हमें अगर टेंशन फाइंड करना है, किसी भी ब्लॉक का वेट फाइंड करना है, तो हम हैंग कर देंगे और जो भी टेंशन का वैल्यू होगा वो वेट हो जाएगा. जब स्प्रिंग स्टेशनरी है तो वेट के इक्वल होगा. तो यहाँ पे T इक्वल्स mg आ रहा है. अब नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, नेक्स्ट केस में हमने इसको एक्सेलरेट कराया डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5. तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा. अगर हम लिफ्ट के फ्रेम से देखें, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखें, तो एक स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा ma, नीचे लग रहा होगा mg, और यहाँ पर एक और लग रहा होगा t डैश. तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, तो t डैश इज mg माइनस ma. तो t डैश की वैल्यू m g माइनस a हो जाएगी. हम यहाँ से अगर m का वैल्यू लिखें तो m वुड बी t बाई जी, t बाई जी, g माइनस a. t है 49, g को लिख दिया 9.8. तो ये 9.8 माइनस 5 विच इज 4.8. 49 1, 49 2, तो 24 न्यूटन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लास्ट टेस्ट में शायद आया था, आप इससे डिस्कस कर लेते हैं. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम गिवन है. आपको बताना है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूटेरियम्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस. तो पहले हम लिखते हैं ये इक्वेशन. ड्यूटेरियम इज 2 1, तो इसका मास 2 है, और सॉरी उल्टा लिख दिया, इसका मास 2 है और एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का वैल्यू वो 1 है. तो इनको हमने फ्यूज कराया, हीलियम बना 2 4, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई. तो Q का वैल्यू इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स हैं हीलियम के लिए, और पर न्यूक्लियॉन एनर्जी है 7. यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और पर न्यूक्लियॉन एनर्जी है 1.1. तो 28 माइनस 2.2, तो ये हमारा 26 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग. 1 सेकेंड, सॉरी दिस इज 4.4, यहाँ गड़बड़ कर दिया.
तो ये होगा 4, हाँ, तो 23.6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सेम है। तो प्रोटॉन, ये जो है ये प्रोटॉन नंबर है, तो ये तो सेम नहीं है, क्योंकि अगर ये एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी सेम नहीं है। फिर न्यूट्रॉन का नंबर, इनका जो डिफरेंस होगा वो न्यूट्रॉन का नंबर होगा। तो 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो यहाँ पर इनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, ऊपर वाले जो है मास नंबर है वो भी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन एफ इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अगर हम यहाँ से रीड करें तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज पाई, पाई बाई 2 पाई 1 बाई 2.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम 4 मीटर लॉन्ग swings with an amplitude of 0.2 मीटर। तो ये हमारा पेंडुलम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.2 मीटर है। तो जो आर्क लेंथ है वो हमें 0.2 मीटर गिवन है। एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ इट्स पाथ, सपोज ये एंगल थीटा नॉट है, तो यहाँ हम एंगुलर एक्सेलरेशन अगर बोलें जो हमारा सिंपल हार्मोनिक का है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओम लिख रही हूँ, एंगुलर स्पीड में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन नहीं हो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट। और जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल वो हो जाएगा ओम स्क्वायर थीटा नॉट इंटू आर, which is alpha, and theta naught into r is nothing but ये वाला एम्पलीट्यूड, ओम स्क्वायर और ये वाला हमारा आर्क लेंथ। इसके लिए जो ओम का वैल्यू है, मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मीन कर रही हूँ, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ओम स्क्वायर हो जाएगा जी बाई एल एंड ए एज इट इज। तो जी इज 10, एम्पलीट्यूड इज 0.2 एंड एल इज 4, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrons are accelerated through potential difference v and protons are accelerated through potential difference of 4v। तो यहाँ 4v। डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ओके, तो अगेन अगर v q चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो k इज क्यू वी एंड k को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पर p को लिख दिया h बार लैम्डा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी पहले भी सॉल्व किया है। और लैम्डा स्क्वायर के लिए रीअरेंज करें तो इट इज h स्क्वायर अपॉन 2m एंड q v एज इट इज। तो यहाँ पे हमको तीनों में प्रोपोर्शनैलिटी है, तीनों पे डिपेंडेंस देखना होगा, पोटेंशियल, चार्ज और मास पे। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम क्यू वी। अभी फाइंड क्या करना है, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी। तो इलेक्ट्रॉन का मास इधर, प्रोटॉन का मास इधर, चार्ज दोनों का सेम है, और जो पोटेंशियल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल प्रोटॉन के पोटेंशियल का 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 लिख दिया, होल अंडर रूट। तो हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एम पी बाई एम, माना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal surface is illuminated by light of given intensity and frequency to cause photo emission. The intensity of illumination is reduced, तो हमने intensity को reduce करा है 1/4। Then the maximum kinetic energy, तो maximum kinetic energy जो है वो frequency पर डिपेंड करेगी बट intensity पर डिपेंड नहीं करेगी। तो intensity को हम कितना भी चेंज करें, maximum kinetic energy हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tubes A and B are in series, radius of A is r and B is 2r, water flows through A with velocity v, तो velocity B में क्या होगी। यहाँ equation of continuity से we can write AV is constant and V is proportional to 1 upon A which is proportional to 1 by d square। आपने यहाँ r square, तो आपने रेडियस को ट्वाइस कर दिया तो जो स्पीड है वो 1/4 हो जाएगी, तो सी ऑप्शन। Water pump rated 400 watt has an efficiency 75%. It is
if it is employed to raise water through a height of 40 meters, the volume drawn in 10 minutes. So power is, efficiency is P out by P in. P out by P in. तो हम पहले P out निकाल लेते हैं. P out हो जाएगा eta times P in, माने 0.75 into 400, तो it is 300 watt. ये हमारा P out आ गया. अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ U विच इज mgh, तो gh तो कांस्टेंट है, ये जस्ट हो जाएगा dm by dt. तो हम यहाँ से dm by dt को लिख सकते हैं. dm by dt is p upon p out upon gh. क्योंकि हमें 10 मिनट्स में बताना है मास कितना ड्रॉन होगा, तो मास ड्रॉन इज dm by dt मल्टीप्लाइड बाय t, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय t. तो p out is 300, g is 10, h is 40 एंड टाइम इज 10 मिनट्स. तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऐसा कुछ हो जाएगा 40 और ये कैंसिल हो गया 2 और ये 30, तो 900 बाय 2 विच इज 450 kg ड्रॉ हो रहा है. बट हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ड्रॉन. तो वाटर का डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज मास अपॉन डेंसिटी, तो 0.45 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म. तो प्रिज्म इक्विलेटरल है, माना ए का वैल्यू 60 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. ए का वैल्यू 60 गिवन है. जब मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है तो r और r डैश की वैल्यू इक्वल होंगी और वो a/2 हो जाएगा, माना 30 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, हमारा जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन i ये हमें फाइंड करना है. फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और साइन r. तो साइन i equals n which is √2 into sin r which is sin 30 1/2. फिर 1/√2 हो जाएगा, माना i का वैल्यू 45 डिग्रीज आ रहा है. अभी डेलमिन इज 2i minus a, तो 2i 45 into 2 90 minus 60, तो 30 डिग्रीज आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. An astronomical telescope has large aperture too. तो थीटा का वैल्यू जो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, और जो रिजॉल्विंग पावर है वो इसी का ही इन्वर्स हो जाता है, कैपिटल डी. तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा. हम लार्जर अपर्चर इसीलिए रखते हैं ताकि हम रेजोल्यूशन को बढ़ा पाएँ, रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा पाएँ. और इसीलिए भी रखते हैं क्योंकि जो रेज हैं वो बहुत ही दूर से आ रही हैं, तो पहले से ही फैली हुई होंगी. तो अगर डायमीटर बड़ा होगा तो वो ज़्यादा रेज को गैदर कर पाएगा. तो गैदरिंग जो रेज है उनको ज़्यादा में ज़्यादा गैदर कर पाए, इसीलिए अपर्चर ज़्यादा होता है, और रिजॉल्विंग पावर बढ़ा पाए, इसीलिए अपर्चर ज़्यादा करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Solid cylinder rolls down from an inclined plane of height h. What is the velocity of the cylinder when it reaches bottom of the plane? तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रोल कर रहा है तो v हो जाएगा 2gh बाय बीटा. बीटा इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ 3/2. यहाँ 2gh 3/2, तो हो जाएगा 4/3gh whole under root. Question number 35. Diameter of flywheel is increased by 1% to increase in moment of inertia. I is proportional to mr square, right? तो अगर हमको r पे डिपेंडेंस देखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो डेल्टा i बाय आई इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा r बाय r. हमने डायामीटर को 1% से इंक्रीज करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2% से इंक्रीज हो जाएगा. 36. Change of 8 milliampere in the emitter current brings change of 7.9 milliampere in collector current. The values of alpha and beta are. तो एक तो हमें ये क्वेश्चन पता है, emitter current equals collector current plus base current. That means changes भी ऐसे ही होंगे. Change in emitter current is change in collector current plus change in
बेस करंट। अभी अल्फा कैसे डिफाइंड है? अल्फा इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो कलेक्टर करंट में चेंज है 7.9 और एमिटर में चेंज है 8, तो ये हो जाएगा 7.9 अपॉन 8.0। तो 8 9 जा 72 और ये बचा 70, तो 8 8 जा 64 बचा 60, 8 6 जा 8 7 जा 56, 3.987 समथिंग आ रहा है। और बीटा इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 7.9 है, तो डेल्टा आई भी हो जाएगा 0.1 मिली एम्पर। हमने यहाँ पे 0.1 मिली एम्पर लिख दिया। डेल्टा आई सी 7.9, तो 79 आ जाएगा। तो 79 और इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.99 लिख सकते हैं, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 50, AV का वैल्यू गिवन है 50, AV इज बीटा R out on R in input which is 50, input impedance 100 है and output impedance is 200, ये वैल्यूज हमें गिवन है। पावर गेन हमें बताना है, तो यहाँ से हम ना बीटा को लिख सकते हैं, बीटा इज नथिंग बट AV RI upon RO। AV is 50, input impedance is 100 and output is 200, तो ये 25 हो जाएगा। And power gain is voltage gain times beta, so 50 into 25, so it is 1250. Next question, pressure of an ideal gas is increased by keeping temperature constant, so kinetic energy of the molecules, so average translational kinetic energy is 3/2 RT per mole। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज़ टू द पावर 4, तो सिग्मा का जो यूनिट होगा वो H A टी रेज़ टू द पावर 4, H का यूनिट वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर का केल्विन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point white dots are 1 mm apart, तो यहाँ पे 2 point dots हैं, they are say 1 mm apart, they are viewed by eye of pupil of diameter 3 mm, तो हमें diameter given है 3 mm। Approximately what is the maximum distance at which these dots can be resolved, तो ये हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा थीटा हो जाएगा, और थीटा अभी अभी हमने देखा था, इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। थीटा को हम लिख सकते हैं स्मॉल डी बाय एल, स्मॉल डी बाय एल, हमें एल के लिए सॉल्व करना है, तो एल हो जाएगा स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी ऑन 1.22 लैम्डा। स्मॉल डी, इनके बीच में गैप, डॉट्स के बीच में गैप 1 mm, कैपिटल डी अपर्चर का डाया विच इज 3 mm, 1.22 लैम्डा, तो हमें लैम्डा गिवन है 500, दिस शुड बी इन nm, नैनोमीटर में हम लेते हैं, तो ये 500 nm में ले रहे हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.225 5 to 10 5 to 10 11 6.1, तो ये 6.1 हुआ, ये 3 10 to the power -9 और 2 भी गए तो -7 ऊपर जाएगा, तो 10 -6 + 7 तो +1, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 5 के अप्रॉक्स आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, intensity of light at point on the screen where path difference is lambda is I
तो जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा तो जो हमारा इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा। ये आई मैक्स की वैल्यू हमें गिवन है आई। Lambda being the wavelength of light years, the intensity at the point where the path difference is lambda by 4. So in general, intensity को हम लिख सकते हैं it is I max cos square phi by 2 और phi का वैल्यू is k delta x, k 2 pi by lambda, delta x हमें path difference चाहिए lambda by 4, lambda by 4. तो I की वैल्यू I dash की वैल्यू हो जाएगी I max which is I cos square phi, phi is ये कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू बाई टू तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 45, cos 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर तो 1 बाई 2, तो इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ। क्वेश्चन नंबर 42, a police car moving at 22 meter per second chases a motorcyclist. The policeman sounds his horn at 176 Hz. While both of them move towards stationary siren of frequency 165 Hz. Calculate speed of motorcycle if it is given that motorcyclist does not observe any beat. तो बीट सुनने में नहीं आ रही, मतलब मोटरसाइकिलिस्ट को दो तरीके से फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में आएगा, एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से सायरन से। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगा, से दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तभी ऐसा होगा कि कोई बीट सुनने में नहीं आ रही है। F1 अगर हम लिखें तो ये F1 डैश लिख देते हैं, F2 डैश, तो ये हो जाएगा F1। यहाँ पर सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा V माइनस VU बिकॉज ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे एंड V माइनस VS। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, और ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो हम नेगेटिव लेंगे। ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा, तो घटाने के लिए न्यूमरेटर में हम नेगेटिव ले लेंगे। F2 डैश हो जाएगा F2। यहाँ पर हमारा सोर्स तो रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, तो V प्लस VU अपॉन V। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 176 V माइनस VU, तो V इज 330 माइनस VO विच इज 20, सॉरी VO फाइंड करना है एंड यहाँ पर है V माइनस VS, तो 330 माइनस 22 तो ये हो जाएगा 308 equals F2 165 V plus VO, V is V is 330 plus V अपॉन 330। तो यहाँ पहले तो ये 11 का टेबल से हम अच्छे से इसको कट कर सकते हैं। 11 16 टाइम्स और ये 11 पर 15 टाइम्स, ये हो गया। फिर 15 1 एंड 22, फिर 22 और 308 को अगर हम लिखें तो 22 4 8 88 इंटू 30, तो एक में क्या करें, तो 200, हाँ तो ये 22 1 और ये 22 14 टाइम, तो ये हो जाएगा 8 बाई 7 330 माइनस V इज इक्वल टू 330 प्लस V। तो अगर हम रीअरेंज करें तो 8 इंटू 330 माइनस 8V, तो 330 इंटू 7 प्लस 7V। ये इधर जाएगा, इधर आएगा, तो हो जाएगा 337 8 minus 7 1 and this is 8 plus 7 15V। V का वैल्यू आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज n if the length and diameter of the wire are doubled keeping tension same। तो लेंथ और डायमीटर डबल कर दिए, टेंशन सेम है, तो फंडामेंटल अभी क्या होगा, तो F इज इक्वल टू V बाई 2L। V को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू एंड म्यू इज रो S को पाई डी स्क्वायर, फिर अंडर रूट है
तो ये dl के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/dl के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमने डायमीटर और लेंथ दोनों को डबल किया, माना जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for an ideal gas the specific heat at constant pressure Cp it is greater than Cv। तो at constant pressure हम Q को लिखते हैं NCP delta T और delta U always NCV delta T and W is NR delta T। तो NCP delta T equals NCV delta T plus NR delta T। तो Cp का वैल्यू Cv से इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो वर्क हमें करना पड़ेगा, सिस्टम वर्क करेगा। तो ऑप्शन ए, देयर इज फाइनाइट वर्क डन बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड व्हाइल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है इसीलिए ही Cv में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो Cp मिल रहा है, तो Cp का वैल्यू Cv से बड़ा होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। There is finite work done by the gas on its environment when temperature is increased while volume, तो वॉल्यूम को तो सेम नहीं रख रहे हैं हम, प्रेशर को सेम रख रहे हैं। प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसा भी नहीं होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इंटरनल एनर्जी हमेशा ही सेम है। आइडियल गैस के लिए इट इज NCV डेल्टा T। नेक्स्ट क्वेश्चन, work energy theorem states that the work energy theorem is work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। So it is kinetic energy of particle is equal to work done by it on it by net force। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।